In continuation of the last chapters that were related with the elasticity, demand, and elasticity of the demand in relation with the price. Today we are starting another unit that is related with the similar concepts, but this is for the supply. जिसमें लास्ट चैप्टर में हमने डिमांड की इलास्टिसिटी को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डिस्कस किया था कि इन दोनों का रिलेशन जो है, जो फ्लक्चुएशन आ रही है डिमांड के अंदर या प्राइस के अंदर, उसकी नोयत क्या है, और उसी हिसाब से हमने कैटेगराइज किया था इलास्टिसिटी को विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड एंड प्राइस। तो 3-4 टाइप्स से, जिसमें आपने इन इलास्टिक से लेकर परफेक्ट इलास्टिसिटी के कंसेप्ट हमने सीखे थे। आज जो है अभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी कौन कौन से हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वैसे हमें रिलेशनशिप्स पता हैं, प्राइस और डिमांड, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, और प्राइस और सप्लाई का आपस में रिलेशनशिप क्या है। प्राइस एंड डिमांड का तो इनवर्स रिलेशनशिप है, यू नो, कि जब एक चीज़ पैरामीटर बढ़ता है दूसरा जो है कम होता है। सप्लाई और प्राइस का जो रिलेशनशिप है दैट इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव। अगर प्राइस बढ़ती है तो जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो कोशिश करता है कि मैं उस चीज़ की सप्लाई बढ़ाऊँ, क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होता है और प्राइस भी अच्छी मिल रही होती है, अच्छे रेट्स मिल रही होती हैं। तो जो प्रोड्यूसर है उसका फ़ायदा हो रहा होता है, वो कोशिश करता है कि मैं सप्लाई अपनी जो है जितनी बढ़ा सकता हूँ वो बढ़ाऊँ। ठीक है, तो जस्ट लुक एट the first paragraph in introduction that in the previous unit we discussed on the demand and its different elasticities as well as the determinants. अच्छा, डिटर्मिनेंट्स में हमने बाइंग बिहेवियर भी देखा, सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट भी हमने पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास क्या है जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस को हम देखते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी elasticity के concepts को। In the unit we shall continue our discussion on supply and market price. Recall that the law of demand states that the higher the price, the lower the quantity consumers will purchase, while the law of supply states that the higher the price, the higher the quantity the supplier will be willing to supply to the market. That is what I told you. However, response of the quantity supply are demanded to changes in the price is unknown. Therefore, the question of how much quantity demanded will react to the price or how much quantity supplier will react to the price is answered by the elasticity. Similarly, like we discussed into the demand when we were discussing about the elasticity of demand. So similar question exists here, that how much fluctuation is happening, that will be answered with the concept of elasticity. Recall again, we define elasticity as a concept that is used to quantify the response in one variable when there is a change in another variable. Consequently, knowing the size and magnitude of these reactions is very imperative. Therefore, we shall examine elasticity of the supply and other quantities is important. अच्छा, elasticity of supply को देख लेते हैं। Habitually, we want to know how responsive is the quantity demanded to change in the price. In the same way, in the same context, we normally want to know how responsive quantity supply is also to changes in the price. Supply की बनस्पत उसमें price
चेंज के वजह से क्या सिचुएशंस आती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिव ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन द प्राइस। अच्छा, यहाँ पर जो फार्मूला जो हमने डिस्कस किया था, चेंज इनटू द क्वांटिटी डिवाइडेड विद द चेंज इनटू द प्राइस, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी क्या है, दैट इज इलास्टिसिटी सिंपली द प्रोपोर्शन the ratio of change in quantity and change in price. Similar formula will be applied here, but instead of putting the difference into the quantities directly, we will put the difference in the supplies. That what was your first supply and what was your next supply. So we will put the difference and then we'll divide that difference with the change in price, that how much percentage change is occurred into the price, but the structure for the formula will be the similar. Clear? आवाज नहीं आ रही है? सर एक बार दोबारा बता देगा ये। Yes, I said the formula that we discussed into the last class for the demand, elasticity of demand, we'll be using the similar type of the formula, but only what has changed, the variable. Not all variables, only one variable that is changed, that is we are replacing the demand with the supply. ठीक है, तो पहले जो हम रेशियो बना रहे थे डिमांड और प्राइस का, उनको डिवाइड कर रहे थे, अभी वो है डिमांड को रिप्लेस कर रहा है आपका सप्लाई का वेरिएबल। डिफरेंस ऑफ सप्लाई विल बी डिवाइडेड विद द डिफरेंस ऑफ द प्राइस। ठीक है, तो जो रेशियो बनेगा वो सप्लाई और प्राइस का बनेगा, क्योंकि हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मालूम करना चाहते थे। पहले में जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते थे तो वहाँ पर हमने डिमांड के डिफरेंस को डिवाइड किया था प्राइस के डिफरेंस के साथ, पर जब हम सप्लाई की इलास्टिसिटी मालूम करना तो हम सप्लाई के डिफरेंस को डिवाइड करेंगे डिफरेंस ऑफ द प्राइस। क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर देखेंगे आपको इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, जो पहला ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि आपको दो कर्व्स नजर आ रही हैं। एक ये वाली कर्व नजर आ रही है S1, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसमें S1 एक कर्व नजर आ रही है, when quantity is Q1, when quantity is Q2, that is also touching the S1, but suddenly you have a quantity Q3 that is consumed or demanded, then you have S2, supply 2, means the level of supplies are changed when we have changed into the price, that is the P1 and P2 or P0. ठीक है, तो वर्टिकल जो आपका एक्सिस है दैट इज शोइंग द प्राइस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज शोइंग यू दैट क्वांटिटी इज डिमांडेड, एंड दिस डायगोनल curves are showing the supplies and how much supply curve have changed when different quantities are demanded or there is a change in the price. Just read the so here you can see the percentage changes in the quantity demand changes to the percentage changes in the quantity supplied. Hence, the measure of the price elasticity of the supply is proportional changes, that is the percentage changes into the quantity supplied is divided by the proportionate changes to the price, that is the percentage changes. The graph below shows how quantity supplied responds to the changes into the price shifting supply curve from the S1 to S2 as price changes from the P1 to P2. ठीक है, ग्राफ क्लियर है ये वाला? सर ग्राफ थोड़ा एक और बार बता दो। इसमें एक्स एक्सिस आपका है वर्टिकल जो आपका है
ये प्राइस के वेरिएबल को शो कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो आपकी क्वांटिटी कंज्यूम उसको शो कर रहा है। इनके आपस में रिलेशनशिप है। यहाँ पर देखें कि जब प्राइस 1 है P1, तो आपकी जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है वो Q1 है, और सप्लाई उसी तरीके से फॉर एग्जांपल S1 है। ठीक है, जब आपकी प्राइस जो है पी नॉट है, तो आपकी जो क्वांटिटीज कंज्यूम है वो भी चेंज हो रहा है, और उसी तरीके से सप्लाई का जो कर्व है वो भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब आपकी क्वांटिटी Q3 तक आ रही है, अगेन चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, तो आपकी जो सप्लाई कर्व है वो डिफरेंट हो रही है। तो आपका टोटल जो डिफरेंस आ रहा है S1 से S2 तक, जब आपकी प्राइस P1 से P नॉट तक जा रही है, और जब आपकी क्वांटिटी कंजप्शन है Q1 से Q3 तक आ रही है। ठीक है, the two supply curves have different elasticity as could be seen from the graph. A change in the price from P1 to P2 caused quantity supply to move from the Q1 to Q2 first, then supply curve S1 quantity supplied moved from the Q1 to Q3 on the supply curve S2। ठीक है, तो ये जो है आपकी जैसे प्राइस में चेंज आ रहा है, तो आपकी क्वांटिटी सब जो कंज्यूम्ड है उनमें भी चेंज आ रहा है। जब क्वांटिटी लेट्स सपोज पहले हम 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी जगह पर हम 5 यूनिट कंज्यूम करना शुरू करेंगे, फिर 20 यूनिट कंज्यूम करना शुरू करेंगे, तो कोई भी आम रिटेलर जहाँ से हम वो यूनिट्स परचेज कर रहे हैं, जब उसकी कंजप्शन डिमांड बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से पूरी करेगा, उसको ज़्यादा सप्लाई भी चाहिए उन्हें यूनिट्स की, उन्हें प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो सप्लाई की लेवल भी इंक्रीज होंगे जब आपकी क्वांटिटी कंजप्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। बट क्वेश्चन मार्क इज गेट दीज सप्लाईज आर इंक्रीजिंग, आर दीज क्वांटिटी कंजप्शन आर इंक्रीजिंग इन विच मैनर, के प्राइस आपकी जो है ज्यादा बढ़ रही है, क्या उनके जो प्रोपोर्शंस हैं इंक्रीज या डिक्रीज के वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो आपकी जो है इलास्टिसिटी का डिफरेंट एक कैटेगरी होगा, जैसे कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था यूनिटरी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट, जिसमें आपके जो यूनिफॉर्म चेंज था दोनों पैरामीटर के अंदर, डिमांड के अंदर भी और प्राइस चेंज के अंदर भी। लेट सपोज 20% प्राइस में डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव, और 20% पॉजिटिव डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट की कंजप्शन में। ठीक है, 20% नेगेटिव आ रहा है डिफरेंस, तो कंजप्शन या डिमांड के अंदर भी 20% नेगेटिव डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर सप्लाई वही जो प्रिंसिपल्स हैं अप्लाई हो रहे हैं कि जब प्राइस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो quantity supplied by the producers also vary in different styles. Sometimes it's a uniform, sometimes it's ununiformed or unbalanced situation. कभी आपकी क्वांटिटी कंजप्शन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, कभी आपकी जो प्राइस चेंज की परसेंटेजेस हैं वो ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है आपका परफेक्ट एंड इलास्टिक और जीरो इलास्टिसिटी। इसमें क्या है कि जब आपकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं फ्रॉम P0, P1, P2, ठीक है, चेंज हो रही हैं, बट आपकी जो सप्लाई लेवल है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? क्या सर दोबारा बताइएगा, आवाज नहीं आई। मैंने कहा परफेक्ट इनलास्टिक या जीरो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट सप्लाई के अंदर ये होता है कि जब आपकी प्राइसेस चेंज होती हैं पर आपकी जो सप्लाई लेवल है वो कांस्टेंट रहती है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी सप्लाई को शो कर रही है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं P0, P1, P2, ये आपकी जो है प्राइस चेंज को डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं, शो कर रही हैं। क्लियर है अभी? ओके यस सर। सर। उसके बाद आपकी इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या होता है कि आपका
जो प्राइस चेंज और आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है उनके अंदर जो है आपकी एक बैलेंस सिचुएशन समटाइम्स नहीं होती। The quantity supplied may change but not proportionate to percentage change in the price। यानी कि सप्लाई क्वांटिटी और जो प्राइस चेंज के जो प्रोपोर्शंस हैं, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि वो यूनिफॉर्म प्रोपोर्शंस हैं या अनइक्वल और डिफरेंट प्रोपोर्शंस के मध्य में चेंज आ रहा है। From the above graph there is a wide change into the price but a little increase into the quantity supplied। यहाँ पर आप apparently भी देख सकते हैं कि ये जो गैप है between these two dotted lines between P0 and P1, that gap is bigger as compared to the gap of these quantities consumed, which brought the difference in these supply levels from, let's suppose this is a supply curve। अगर आपकी क्वांटिटी कंजप्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गैप जो है छोटा है एज कम्पेयर द गैप बिटवीन दीज डिफरेंट प्राइस फ्लक्चुएशन। तो इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर, इलास्टिक सप्लाई के अंदर आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ चेंज होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रोपोर्शन होता है चेंज का बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। वो आपको जो है यूनिफॉर्म रहता है। जितना चेंज 5% आ रहा है तो 5% दोनों पैरामीटर्स में आएगा, 10% आ रहा है, 20% आ रहा है तो दोनों वेरिएबल के अंदर 10% का या 20% का यूनिफॉर्म चेंज आएगा। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फॉर यूनिटरी इलास्टिक product is always 1। The distance between the Q1 Q2 is equal to the distance between P1 and P2। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना हुआ, तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस P1 एंड P2 इक्वल होना चाहिए Q1 एंड Q2 के बराबर, पर यहाँ पर Q1 Q2 थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है, which is not right। But remember the concept that whenever we are talking about the unitary elasticity, then it means that there is a equal proportion of the change between the price and quantity consumed, and accordingly your supplies will be reacting। clear है? यस सर। उसके बाद elastic supply will occur when the full value of the percentage change in quantity supplied is larger than the percentage change in the price। अगर प्राइस के अंदर 5% चेंज आ रहा है तो आपका जो है सप्लाई के अंदर लेट्स सपोज 15% चेंज आ रहा है। दैट इज योर द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक सप्लाई, जहाँ पर हमेशा सप्लाई की क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा होगा और प्राइस की क्वांटिटी में चेंज जो है कम होगा। दैट इज व्हाट वी विल बी कॉलिंग एज द इलास्टिक सप्लाई। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर जो चेंज है वो कम है और जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड है उसके अंदर जो है इंटरवल गैप ज़्यादा है, और उसी हिसाब से आपका सप्लाई रिएक्ट करेगा और सप्लाईज भी आपकी बढ़ेंगी। उसके बाद परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा कि आपकी प्राइस कांस्टेंट होगी 0, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और आप चेंज किस चीज़ में आएगा, सिर्फ सप्लाई में चेंज आएगा, क्योंकि आपकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी Q1 Q2 Q3। ये ग्राफ नज़र आ रहा है क्लियर, या उसको और जूम करूँ? सर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ये आपकी P1 कांस्टेंट है। मेरा कर्सर भी नज़र आ रहा होगा ना, कर्सर? जी 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 सर। ठीक है, P1 देखें यहाँ आपका कांस्टेंट है और क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं, Q1 Q2 Q3 चेंज हो रही हैं, और उसी हिसाब से आपकी जो सप्लाई कर्व है वो भी आपकी चेंज होगी एज विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। बट आपका जो प्राइस है ये वर्टिकल एक्सिस में आप देख सकते हैं प्राइस आपका एक ही जगह पर रुका हुआ है।
उसके बाद कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को? सिंपल फार्मूला दैट आई टोल्ड यू दैट इज अ प्रोपोर्शन or ratio between the change into the quantity supplied and change into the price. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो सप्लाई है वो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज इन द प्राइस। आपका चेंज इन क्वांटिटी लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं 15% चेंज है और चेंज इन प्राइस 5% है, तो आपको जो टोटल आंसर मिलेगा वो 3% का मिलेगा। 3% मीन्स इट इज ग्रेटर देन 1, और आपका इसमें कौन सी इन द अबव एस्टिमेशन द इलास्टिक सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, हैंस सप्लाई इज इलास्टिक। नोट, क्योंकि इलास्टिक सप्लाई में हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था कि आपकी जो है प्राइस चेंज का जो प्रोपोर्शन होगा वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ द चेंज इनटू द कंजप्शन। जब आपकी क्वांटिटीज कंज्यूम्ड के अंदर जो है चेंज ज़्यादा होगा और प्राइस के अंदर चेंज कम होगा, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। 15% क्वांटिटी में चेंज आया है, 5% प्राइस में चेंज आया है, तो उसको जो है उसका आंसर जो है हमेशा एक से ज़्यादा आएगा, एक से बड़ा आएगा। जब आंसर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका जो है वो इलास्टिक सप्लाई होगा। नोट, बेटा माइक किसका आना है प्लीज हो जाए। Note also that the elasticity is positive because a rise in the price caused a rise into the supply. If it is caused falling the supply, then the elasticity result will be the negative. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, if in other situation this 15% rise into the quantity supplied was result of the 25% rise into the price. जब आपका जो है प्राइस के अंदर चेंज ज़्यादा आ रहा है और कंजप्शन के अंदर चेंज कम आ रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो बिलो 1 आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, जो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज एन इलास्टिक बिकॉज द वैल्यू दैट वी आर गेटिंग इज लेस देन 1। क्लियर है? यस सर। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, इनकम की वजह से आपकी डिमांड के अंदर क्या चीज चेंजेस आ सकती हैं? इनकम से क्या मुराद है हमारी? बाइंग बिहेवियर, बाइंग पावर, टू बाय समथिंग, टू बाय सम प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज। पहले हम सपोज अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अभी ये अफोर्ड कर रहे हैं, तो वो भी इम्पैक्ट किसके ऊपर करेगा? डिमांड के ऊपर, कंजप्शन के ऊपर, सप्लाई के ऊपर। ठीक है, so just look at this paragraph. Income elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded is a result of percentage change in the household's income. ठीक है, पहले जो ये इक्वेशन हम यूज कर रहे थे इसमें क्या पुट कर रहे थे? चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड विद द चेंज इन प्राइस। पर जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वी विल रिप्लेस द प्राइस विद द परसेंटेज ऑफ इनकम, उसमें कितना चेंज है। ठीक है, तो सिंपली यू कैन सी व्हाई showing your the income elasticity of demand is equal to change into the quantity demanded divided with the percentage change into the income। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन इनकम, उसके वैल्यूज आपको मिले हुए होंगे। जस्ट यू नीड टू पुट इट इनटू द फार्मूला एंड गेट द आंसर। क्लियर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यस सर। उसके बाद आपकी है क्रॉस इलास्टिसिटी। Cross elasticity of the demand is used to measure the percentage change in the quantity demanded of one product when there is a change in the price of another close product, means relevant product. For this reason, it is sometimes referred as a cross elasticity of a demand. For example, if the price of X increases and the quantity demanded of Y decreases, it indicates that X and Y are complementary goods. In this case,
cross price elasticity will be negative figure. A good example of a complementary good is a bread and butter. If the price of bread increased by the 7%, which led to the 4% decrease into the demand of the butter, then cross price elasticity of demand will be percentage change into the quantity demanded of X divided with the percentage change and the price of G. Cross elasticity of demand is equal to change in quantity demanded, that is let's suppose उसके अंदर -4 का डिफरेंस आया और आपके जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है उसके अंदर 7% इंक्रीज आया, तो ओवरऑल आपको जो आंसर आएगा वो -0.5 आएगा. In contrast, if the increment of the price X causes the quantity demanded of Y to increase, it indicates that X and Y are substitutes. Substitutes का मैंने क्या बताया था, यानी कि जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकें. प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी हैं, तो एक ही प्रोडक्ट जो है लेट सपोज उनके जो प्राइसेस हैं या उनकी जो नीड है वो सिमिलर टाइप है. ठीक, उनके जो फंक्शंस हैं, उनकी जो यूटिलिटी है वो सिमिलर एक जैसी है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अगर हम एक के अंदर लेट सपोज प्राइस बढ़ गई तो उसको हमने छोड़ के प्रोडक्ट ए को छोड़ के हमने प्रोडक्ट बी परचेज कर लिया ड्यू टू लिटिल बिट हैंडसम प्राइसेस. ठीक है, तो वो कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट. बट कम्प्लीमेंट्री क्या कहलाता है, आप ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड को आप बटर लगा के खाते हैं, तो ब्रेड एंड बटर आर द कम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर. हम बगैर बटर के भी खा सकते हैं, बट अगर आप बटर ऐड करके खाएंगे तो मे बी यू विल गेट द मोर सेटिस्फेक्शन लेवल वाइल कंज्यूमिंग. क्लियर है? जी सर. ओके, नाउ इन दिस केस तो हमने दो किस्म की बातें की, दो सिनारियोज डिस्कस किए. एक तो जब गुड्स आर कम्प्लीमेंट्री फॉर ईच अदर, दूसरा in contrast if an increment in the price of X causes the quantity demanded of Y to increase. वो कब करेगी, जब वो सब्स्टिट्यूट होंगे एक दूसरे के लिए. और यहाँ पर जब कम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो जो है maybe they will be having a inverse relationship, but here they could have positive relationship. In this case, the cross elasticity of demand will be positive. Example, substitute goods is a butter and margarine. If the price of margarine increased by the 10% and the quantity demanded for the butter is increased by the 2%, then we have cross elasticity of demand, like change into the quantity of demand X and change into the price of the G. Simply आप values put करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा. तो क्रॉस इलास्टिसिटी का कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाले इक्वेशंस हैं, इनको आपने ज़हन नशीन कर देना है. कुछ आसान तरीके से बताइएगा कुछ. अच्छा, क्रॉस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लें. इसमें क्रॉस में दो सिनारियोज होते हैं. एक होते हैं आपके कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दूसरा होता है आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें जब हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स की, तो उसमें अगर एक की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरे की प्राइस कम होती है. ठीक है, तो उसमें जो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो समटाइम्स आपकी जो है नेगेटिव शो हो रही होती है. और जब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो दूसरी की भी प्राइस जो है वो पॉजिटिव चेंज होगा उसके अंदर भी. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो यूनिफॉर्म चेंज हो, एक जितना चेंज हो, बट इट विल इम्पेक्ट पॉजिटिवली. जब पॉजिटिव आपका चेंज होगा दोनों साइड, तो आपको जो रेशियो का जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा. ठीक है, ऊपर हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर आपका जो है एक के अंदर नेगेटिव चेंज था, दैट इज -4, और दूसरे के अंदर पॉजिटिव चेंज था, तो आपका जो आंसर आया वो नेगेटिव आया. ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा कि जो इसमें लेट सपोज 2 का पॉजिटिव चेंज आया, दूसरे के अंदर प्रोडक्ट के अंदर 10 का पॉजिटिव चेंज आया, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आया वो आपका पॉजिटिव आया. ठीक है,
That is what we call as a cross elasticity of the demand when we are considering these two scenarios as a complementary and as a substitute. Clear है अभी? ओके सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं जिसमें आपकी स्पेयर कैपेसिटी, आपके पास आप प्रोड्यूसर है और प्रोड्यूसर बीइंग ए प्रोड्यूसर आपके पास जो है कैपेसिटी है कि आप 10,000 यूनिट्स एक दिन में बना सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप करंटली जो सप्लाई दे रहे हैं मार्केट को वो है आपकी लेट सपोज 8,000 यूनिट्स की, और अचानक से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो आप मजीद कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर 8,000 से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कंजप्शन बढ़ जाती है, तो मजीद कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर पाएंगे? जी सर आपने 10,000 बताया ना अभी। सर वो आपने बताया कि 10,000 रुपए के हाई है उनके मैक्स। 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी है और नॉर्मली वो 8,000 सप्लाई करते रहते हैं। तो अगर प्राइस जो है डिमांड बढ़ जाती है तो मैक्सिमम कैपेसिटी उनकी 10,000 है, तो 8,000 तो वो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा वो 2,000 मजीद प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप उनकी जो है डिमांड बढ़ जाती है तो वो सप्लाई कितनी इंक्रीज करेंगे, मजीद 2,000 यूनिट की सप्लाई वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो स्पेयर कैपेसिटी जो है यही कंसेप्ट है कि आपके पास स्पेयर में कितनी कैपेसिटी बची हुई है जिसको आप मजीद सप्लाईज को एनहेंस करने में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलास्टिसिटी हैं कि जो डिटरमाइन करते हैं कि मजीद इतनी सप्लाईज जो हैं उनको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है या उनको मिटिगेट किया जा सकता है। उसके बाद स्टॉक अवेलेबिलिटी है कि आपके पास स्टॉक किस चीज़ को कहते हैं? इन्वेंट्री इसको, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ इनपुट्स हम देते हैं, वो मटेरियल्स हों, वो लेबर हो, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनको जो है हम यूटिलाइज करते हैं। तो कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा products are extra commodities which are being demanded into the market. Time is also that how much time you are having to increase your supplies, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में टाइम की हर चीज़ है। आपको अगर जो चीज़ टाइम पर मिलेगी, सही जगह पर मिलेगी, सही रेट पे मिलेगी, तो उस चीज़ की जो सप्लाईज हैं वो उसी तरह से आपकी जो है क्या कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन की जाती हैं, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स व्हिच आर बेसिकली explaining the concept of supply, or we can demonstrate the concept of supply of the different commodities. बाकी इम्पोर्टेंस तो मैं बता चुका हूँ कि इलास्टिसिटी की क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद द यूटिलिटी। अच्छा, एक चीज़ जहन में रख लें कि ये जितने भी सेल्फ मार्क्ड असाइनमेंट्स हैं हर चैप्टर के एंड पे दिए हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट सिनारियो के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, तो इनको आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके सर। और ये जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो जस्ट हाइलाइट्स हैं, ऐसे ना हो कि आप जो क्वेश्चन है आंसर के वो एक एक लाइन याद करके आए। इनको जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो जैसे मैंने पढ़ाया है, हमने डिस्कस किया है पैराग्राफ्स के अंदर, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं ये जस्ट दीज आर द शॉर्ट आंसर्स जस्ट टू गिव यू द कंसेप्ट, बट if it is asked
to give more detailed explanation, so you have to go in more depth explanation with some kind of scenarios, with some kind of examples, like the cases we have discussed in the paragraph. अच्छा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो अभी हम बेसिकली इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे दैट इज अ यूटिलिटी कंसेप्ट, कि यूटिलिटी क्या है और यूटिलिटी किस तरीके से चेंज होती है, उसके जो है सिंपल से अर्थमेटिक बेसिक फार्मूलाज होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर यूटिलिटी का। उसके बाद जो है दूसरा यूनिट जो मैं करवाऊंगा वो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सिनारियोज होगा, कि प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से कॉस्ट होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाकी चैप्टर तो काफ़ी सारे हैं, पूरी बुक तो मैं अभी नहीं कवर कर पाऊँगा, पर मज़ीद एक दो यूनिट्स हैं, यूटिलिटी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और मार्केट सिचुएशन। तो ये तीन जो है इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीक अभी हमारे पास है टाइम, हमारे पास बहुत है वैसे। क्लासेस अभी कितने में क्लासेस आपके? सर मैं भी 40 हो गए। 40 हो गए। अभी हमारे पास क्लासेस हैं, मजीद 5 क्लासेस हैं। तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम अपना सिलेबस पूरा कर देंगे। सर फाइनल्स बकरीद से पहले होंगे, बकरीद के बाद होंगे? आई थिंक बाद में होंगे, 15 फर्स्ट जून, फर्स्ट वीक में होंगे जून के। सर तो कुछ अपनी क्लासेस फिजिकल्स होगी 20 अप्रैल के बाद? वैसे तो क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, बट अगर आप लोग बोलेंगे तो कुछ रिवाइज कर लेंगे। जो जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा। बस क्लासेस उनकी अटेंडेंस नहीं होगी, बट मैं वैसे ही क्लासेस ले लूँगा। अगर कोई इशू है कहीं पर आपको कोई समझ नहीं है तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ओके सर। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अभी अवेलेबल है? 36, 35? 35 अवेलेबल है। बाकियों को क्या हुआ है? उनकी अटेंडेंस सबकी पूरी है, क्यों ये क्लास नहीं सर ज्वाइन सो रहे करते? हैं वो लोग, उनकी नींद पूरी नहीं हुई सर। अगर नींदें पूरी नहीं, फिर नींदें उनकी उड़ जाती हैं जब अटेंडेंस स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उनको चल ठीक है। बहरहाल जो अवेलेबल हैं अभी मुझे वो अपनी अटेंडेंस लगवा दें, बाकी जिनको नींदें करनी है आराम से नींदें करें। रोल नंबर 01। प्रेजेंट सर।